ਐਮਪਟੀ ਪੋਕਟ ਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤ੍ਰਿਯੋਗੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। चलो जी चलिए। रास्ते दा पूरे घैंट है जी, घैंट भी ते खतरनाक भी। पत्थर आए बाहर निकले हुए है भी। सिंगल रोड ही है ये यार। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆ ਕੰਮ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਲਯ ਆਈ ਆ, ਪ੍ਰਲਯ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚਲਾਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਗਲ ਆਏ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਆ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਵੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਥੱਲੇ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਸੋਨਪ੍ਰਯਾਗ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਪ੍ਰਯਾਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਨਪ੍ਰਯਾਗ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਮੋੜ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੋਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਥਾਪੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਥਾਪਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਪੱਟਿਆ ਉਹਨੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਬਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਪ ਟਾਈਪ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਗਾ। ਖੜਦੇ ਨੇ ਪਲੇਨ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੱਡਾ ਸੀਗਾ ਉਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਨਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਤੋੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜੇ ਵੀ ਚੁੰਝੇ ਨਾਲ।
चंगा नहीं मतलब वो रुक के आए जेडे कह रहे हैं ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਦਾਰਨਾਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਨਹੀਂ लो जी गौरीकुंड पहुंच गए हैं ते इत्थे अलकनंदा दा ये रूप है जी शायद अलकनंदा ही आ नामा तो सॉरी मैनू नहीं जान पर इत्थे पहुंच गए सी ते इदू अगे सड़क हो गई बंद ते उस सामने रास्ता हैगा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰ ਕਹਿੰਦੇ लो जी अपनी स्टार्ट हो गई यात्रा ये वाला वो कहता है यहीं पास तो है बोल रहा इधर चले जा बच के तिलकन तो बच के मंदिर बंद है जी ओके अप्रैल ते बैसाखी ते खुलदा कहंदे जी। चलो मैया को यहीं से प्रणाम, जितना सफ़र लिखा था वो हो गया, मैया को यहीं से प्रणाम कर दो भाई। बोल शंकर भगवान की जय। पंजाब बठिंडा। हाँ जी बैठो बैठते हैं। हाँ पीछे
ਬੈਠਨੇ ਆ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਫਿਰ नीचे ਚੱਲਦੇ ਆ। ये क्या बोलते हैं, बद्रीनाथ उठाते दरिद्रता। आप बद्री के दर्शन करोगे ना, वो पालन करता है, वो आपके परिवार की दरिद्रता ये सब हटाएंगे। और जो केदार बाबा की केदार घाटी है ना, ये मोक्ष देती है। इन दोनों की कहानी ऐसी है। यहाँ माई ने 5000 वर्ष तपस्या करी है शिव जी की, तो बाबा दर्शन नहीं दे रहे थे। तो माता रानी है, वो भी आदि शक्ति, उन्हें भी क्रोध आएगा। किसी जमाने में पहाड़ी अलग हुआ करता था, ये हिमालय है पूरा, यहाँ बैठे हुए। ये माई के क्रोध से ना या बराबर जमनी सब बंद हो गई, काला बादल पड़ जाता है। गाँव वाले मुझे बताते हैं। ना तो यहाँ पे भी पूरा ये सोनप्रयाग से पूरा हिमालय घाटी चालू होती है। ओके, सोनप्रयाग से। हाँ, फिर बाबा को सारे देवी देवताओं ने बाबा से आग्रह करा। हाँ बाबा उठ क्यों नहीं रहे थे? हाँ बाबा सती के वियोग में लीन, हाँ जो सती जल गई थी ना, हाँ हाँ तो बाबा ने अपनी पालनकर्ता वाली बुद्धि सब खो बैठी थी। हाँ तो बाबा जाके समाधि में लीन हो गए। अब उन्हें कौन उठा सकता था? दोबारा आदि शक्ति आएगी, हाँ, उठा फिर सकती थी। बिल्कुल। तो आदि शक्ति को धीरे धीरे छोटे से ही हिमाचल की पुत्री है ये माता रानी। तो वहाँ से आके यहाँ पे बाबा को वही माई को छोटे से ना हरकत होने लगी थी कि कुछ एक डमरू हुआ करता था। हाँ पूरे ब्राह्मण और उन्होंने परिवार वो डमरू को उठा रहे थे धरती से, कोई डमरू को नहीं उठा पा रहा था। तो पार्वती मैया गई खेतों में ऐसी और डमरू उठाने लग गई। तो सब समझ गए थे उसी समय हाँ कि शिव का वरदान इसमें है। इनके परिवार वाले ना सब समझ गए थे कि शक्ति है ये, क्योंकि जब उस डमरू को 10 जने नहीं उठा पा रहे थे, तो उस बच्चे ने उठा लिया। हाँ उस बच्चे में आदि शक्ति थी। तो माई को क्रोध आने लग गया, देवताओं ने आग्रह करा, फिर बाबा को जगाया, फिर माई को बाबा को भी बताया। फिर बाबा को धीरे धीरे अपनी अनुभव होने लग गया ज्ञान का भी, वो सती वियोग से निकलने लग गए हाँ कि हाँ ये आदि शक्ति है, हाँ मेरी धर्मपत्नी हाँ दोबारा रूप में आई है। तो ये जो शीला रूपी है ना गुरुजी, हाँ केदारनाथ का पूरा महत्व है इसका। इसमें बाबा और माई का दोनों का मिलन हुआ है। अरे बाबा ने यहाँ साक्षात दर्शन दिए है, माई वहाँ तपस्या करती थी, तो माई वहाँ से चल के यहाँ पे आई है। सही है। तो इसे शीला रूपी यू बोला जाता है। फिर इन दोनों की शादी तिरोगी नारायण में हुई थी। तो उधर से सुबह पहले उधर गए थे। पहले उधर गए। तिरोगी नारायण में जब शादी हुई, शादी के लिए दोनों गए, हाँ तो फिर चर्चा होने लगी कि साक्षी कौन बनेगा। हाँ साक्षी है नारायण जी, तो वहाँ नारायण जी की मूर्ति है। विष्णु तभी उसका विष्णु नाम- नारायण जी, हाँ, विष्णु तभी उसका नाम पड़ा तिरोगी नारायण, हाँ क्योंकि जब बाबा माई की शादी हुई ना, हाँ। तो साक्षी बने थे नारायण जी। वो तीनों जोगी थे ना, मैया थी, भगवान थे और वो विष्णु जी थे। फिर बाबा पे हाथ है अपना, ये तपस्या में लीन हो गए दोनों। फिर अब पांडवों को तो बोल रखा था कृष्ण मुरारी जी ने हाँ कि भैया बाबा ही देंगे मुक्ति। हाँ बाबा को संकेत हो गए कि पांडव आ रहे, और बाबा चले गए ऊपर। उनके लिए क्या, उनके लिए तो एक पग रखा, वो पहुंच गए वहाँ। हाँ एक एक पग की कहानी, हमारे लिए तो घंटों लग जाते हैं ना। हाँ तो भैंसों के रूप ले लिए उन्होंने। 5 पांडवों में एक भाई को ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई। अच्छा हाँ, वो था सुखदेव जी। हाँ जी। उन्हें कृष्ण जी ने रोक दिया था। हाँ ओके जब उनके पिताजी मरे थे ना, हाँ। उन्होंने अपने पुत्रों को बोला, हाँ। मेरे मरने के बाद आप मेरा मांस खा लेना, अच्छा आप ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, मतलब भविष्य आप सब जानोगे। ओके तो 5 भाइयों ने करा, अरे यार ना ना ना, हमें ब्रह्म ज्ञान नीचे घिन कर देने लगे। पर जो सुखदेव था सब चले गए ना। हाँ सुखदेव ने बोला, आज्ञा तो आज्ञा है। खाना ही है। उसने जाके खा लिया और कृष्ण जी ने देख लिया। रामायण महाभारत, कृष्ण जी बलबीरी को तो अधिकार दिया था, और सुखदेव को भी पूरा पता था क्या था सुखदेव को क्या क्या होने वाला है। तो कृष्ण जी ने उन्हें वचन में बांधा, हाँ कि तुम बोलोगे अगर नहीं। बताओगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम हाँ। मर जाओगे, जो भी कहानी है। हाँ। तो सुखदेव को बांध दिया था, और सुखदेव को भी पता था कि बाबा ये है, और वो कृष्ण जी से बंधे हुए थे। और उन्होंने भीम को ये सलाह दी, भैया आप दोनों टांग फैला लो। एक वहाँ का नाम है, 2 शिला है ऊपर, ओके उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। तो भीम ने जब टांग फैलाई ना, ये तो बताया नहीं कि साक्षात शिला वो बोलते हैं जय और विजय। जय और विजय तो अलग है। खैर एक, अरे जिधर एक तो ये भ्रम कर्म लुकता है जाते हैं, हाँ ब्रह्म गरुड़ चट्टी क्या बोलते हैं इधर की साइड है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वासुकी ताल, एक वासुकी ताल में टांग फैलाई थी, और एक इधर की साइड टांग फैलाई थी उन्होंने। चौड़ाबाड़ी सारे भैंसे तो गुजरने लग गए। अब लास्ट का भैंस वो देख के महादेव फिर जी। हाँ, वो तो समझ गए कि अब यही महादेव है, हाँ ये आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो जैसे ही भीम आगे को बढ़े ना, तो उनका खुड्डी आया था हाथ में। अच्छा तो महादेव अंदर समा गए, मुंडी निकल गई थी पशुपतिनाथ में। ठीक है। हाँ, जो 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन है, कहते हैं कि जो पशुपति का भी जितना महत्व है ना, पर सबसे ज्यादा महत्व यहाँ का है, क्योंकि यहाँ पे साक्षात दर्शन दिए थे। जैसे अंग काफी निकले थे, तुंगनाथ, मध्वेश्वर, हाँ और जो 12 ज्योतिर्लिंग की मेन ज्योतिर्लिंग है ना, वो केदार घाटी है।
ओके। हाँ, किसी पुराने पूर्वज बताते थे। क्या वीडियो बना रहे हो क्या? हाँ हाँ अरे गुरुजी, गुरुजी क्या है, ज्ञान है यार आपका। हमारे हम भी बता पाएंगे आगे अपने। आगे भी किसी को बता पाए ना। हाँ चलो ये ठीक है। हाँ पुराने पूर्वज बताते थे, मैं संतों के साथ बहुत बैठा हूँ यार, हाँ कि आप केले के ज्योतिर्लिंग में 1 रुपए डालते थे ना, जी। वो पुराने पूर्वजों ने पशुपति नाथ जाके निकाले वो पैसे। सही है जी महाराज। ये पाप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। हमारे इस धरती के अंदर सांप रहते हैं। हाँ ये जो माया है ना, ये हाँ सबको हटाते जा रहे हैं। हाँ जितना पाप बढ़ेगा उन्हें अधिकार मिला हुआ है, हाँ क्या आप हटाते जाओ, वो सब लुप्त हो चुका है इस समय। सत्यवती मैया। जय गंगा मैया। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੋਨੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਹੋ, ਜੈ ਗੰਗਾ ਮੈया। ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਈਆ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਮਈਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਉੱਦੇ ਬੁਲਾਇਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਪਟੀ ਪਾਕਟ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ।